السلام علیکم ویورز. ناول محافظ. عرفان کتنی دیر سے کھڑا اس کو سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماحول ہی سے نہیں بلکہ اپنے آپ تک سے بیگانہ تھی. سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھی. کچھ سوچ کر عرفان اس کے قریب جا بیٹھا. کیا سوچ رہی ہو؟ عرفان نے اس کے گالوں پر چمکتی ہوئی افشا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بڑے آرام سے پوچھا. تم سے مطلب؟ شازیہ جیسے کاٹنے کو دوڑی. نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ. ویسے میں. عرفان رک کر شرارت سے مسکرایا. جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو. کیا سوچ رہی ہوں؟ شازیہ نے بے ساختہ پوچھا. یہی کہ رات کو اکیلے کمرے میں ڈر لگے گا. ویسے اگر تم کہو تو میں اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں. ایڈیٹ یو فول. شازیہ غصے سے اسے بڑا بلا کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. میں نہیں ڈرتی ورتی کسی چیز سے. اور تم بھی کان کھول کر سن لو. میں صرف بابی کی وجہ سے تمہارا لحاظ کرتی ہوں ورنہ تم جانتے ہو میں کتنی زیادہ بدتمیز ہوں. جی ہاں, اس گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کے بدتمیز ہونے کا ثبوت مل گیا تھا. لیکن کیا کروں, بدتمیز ہونے کے باوجود یہ دل آپ کو پسند کرنے کی غلطی کر بیٹھا ہے. وہ منہ بنا کر بولا. او شٹ اپ. شازیہ دانت پیستی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور غصے کے اظہار کے طور پر دروازہ زور سے بند کر دیا. سب گھر والوں کی خواہش تھی کہ شازیہ اور عالیہ کی شادی ایک ساتھ ہو تاکہ پھر ماں باپ پر مزید کوئی بوجھ نہ رہے. مگر شازیہ نے جو ضد کی تھی وہ پوری ہوئی اور عالیہ اکیلی دلہن بن کر پیا کے دیس چلی گئی. عالیہ کی شادی کے دوسرے دن وہ بیٹھی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی. کچھ عرفان کا خیال تھا اور تھکن کے بس خاموش تھی. بس اب شازیہ کا فرض باقی رہ گیا ہے. ماں نے کہا تو شازیہ نے برا سا منہ بنا لیا. میری سمجھ میں نہیں آتا آخر اس لڑکی نے کیا سوچ کر شادی سے انکار کیا ہے. آنٹی, دراصل یہ بھی آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے. عرفان نے اسے جلانے کے لیے کہا. شازیہ کی امی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا. کیسا فیشن؟ یہی کہ پہلے شادی سے انکار کرو اور پھر. عرفان نے کہا تو شازیہ نے آنکھیں نکال کر اسے گورا. بابی جلدی سے بولیے. ارے بابا اب ختم کرو یہ قصے کو. شازیہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر وجہ نہیں بتائی تھی. بہت پوچھنے پر بھی وہ یہی کہتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی. وہ 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی جس کی شادی ہو چکی تھی. عالیہ شازیہ سے بڑی تھی مگر دونوں بہنوں میں محبت بہت تھی. جب عالیہ اور اس کی شادی کی بات چیت شروع ہوئی تو اس نے بغیر وجہ بتائے انکار کر دیا. چونکہ عالیہ بڑی تھی اس لیے سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلے عالیہ کی شادی ہو جائے. جب شازیہ اکیلی رہ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ شادی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. انہی دنوں بابی کا بھائی عرفان امریکہ سے چلا آیا اور شازیہ کو پسند کرنے کی غلطی کر بیٹھا. مگر شازیہ کو تو جیسے اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا. اس سے بات کرنا پسند نہ کرتی تھی. یوں بھی شادی سے وہ پہلے ہی انکار کر چکی تھی. عالیہ نے بار بار پوچھا بھی تھا اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتا دو اور اگر کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو اس کا ماتم کرنے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ اپنا گھر بساؤ اور ماں باپ کو بھی اپنا فرض پورا کرنے دو. شازیہ نے یہ سب کچھ بڑے اطمینان سے سنا تھا مگر بولی تو صرف اتنا. کیا مرد کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ آخر مرد کو عورت کی زندگی میں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ صدیوں پہلے کا زمانہ نہیں جب عورت محض جہالت اور کفالت کی وجہ سے مرد کا سہارا قبول کرتی تھی. اب وہ زمانہ نہیں رہا. کیوں؟ اب زمانے کو کیا ہو گیا ہے؟ عالیہ نے بگڑ کر پوچھا. اب عورت تعلیم یافتہ ہے, خود کماتی ہے, آزادی اس کا حق ہے. آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں یہ سب قصے پرانے ہو گئے ہیں؟ پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہی ہو, کس آزادی کی بات کر رہی ہو؟ عالیہ نے الجھ کر کہا تھا. زمانہ بدلنے سے مرد کی اہمیت پر کوئی حرف نہیں آتا, نہ اس کی ضرورت کم ہوئی ہے. مرد ہر زمانے میں مرد ہی رہا ہے. مثال کے طور پر ابو اور بھیا کو ہی لے لو.
प्लीज ये मौजू बंद कर दो, शाजिया ने करवट बदल कर कहा और मुंह बनाकर लेट गई। मगर आलिया परेशानी से इसके बारे में सोचने लगी। वो जानती थी शाजिया तन्हा नहीं रह सकती। अगर वो सब बाहर बैठे होते और शाजिया से कहते जाओ बई अपने कमरे में फलां चीज ले आओ, तो वो फौरन कहती मुझे डर लगता है, आलिया को मेरे साथ भेज दीजिए। और तो और वो अकेली सोती तक ना थी, हमेशा आलिया के साथ सोती। मगर अब इसने अजीबोगरीब फैसला करके सबको परेशान कर दिया था। आलिया अक्सर सोचती हो सकता है कि इसे किसी ने धोखा दिया हो, जिसकी वजह से इसे मर्दों से नफरत हो गई है। ताहम इसने सोचा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो अकेले रहने की वजह से कोई बेहतर फैसला कर सकेगी। लेकिन इसने तो इन सबको हैरत ज़दा कर डाला। अकेले कमरे में रहने का फैसला कर लिया था। शाजिया ने दस्तक की आवाज सुनकर शाजिया ने गुस्से से दरवाजा खोला। इसका ख्याल था शायद दस्तक इरफान ने दी है, मगर बाहिर भाभी खड़ी थी। शाजी, रूमी को भेजूं तुम्हारे पास? उन्होंने प्यार से पूछा। क्यों? इनका मतलब समझकर शाजिया गुस्से में आ गई। मैं जब अकेली जिंदगी गुजार सकती हूँ तो क्या अकेली सो नहीं सकती? इरफान अभी तक वहीं सतून से टेक लगाए खड़ा था। पलटकर बोला, और क्या बाजी, आप तो ख्वामखा इन्हें परेशान कर रही हैं। ये अब कोई बच्ची थोड़ी है, माशाल्लाह 19 बरस। और ओ यू शट अप। शाजिया ने घूर कर इसे देखा। वैसे बाजी आप घबराइए नहीं, मेरा कमरा तो इनके साथ है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो ये मुझे मदद के लिए पुकार सकती हैं। इरफान फिर भी बाज ना आया। हो ना हो, 30 मार खान की शक्ल तो जरा देखिए। शाजिया ने नफरत से इसे देखा। इरफान जानता था कि शाजिया डरपोक है, इसलिए पुरखुलूस लहजे में बोले, शाजिया रूमी को अपने कमरे में सोने दो, वरना तुम रात में डरोगी। ओफो, आखिर क्या समझ रही हैं आप मुझे? एक छोटी सी बात को मसला बना दिया है, जिसे देखो हमदर्दी में चला आ रहा है। कह दिया मैंने, नहीं डरती वरती किसी चीज से मैं। आप सब अपने कमरे में चले जाइए। फौरन इनके जाते ही इसने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया था। ये लड़की शायद पागल हो गई है। शाजिया की भाभी बोली, जी नहीं, वो हम सबको पागल करने का इरादा रखती है। इरफान ने कहा तो भाभी घूरते हुए बोली, तुम चुप रहो। जी बेहतर, इरफान ने सआदतमंदी से कहा और अपने कमरे में वापस चला गया। शाजिया अकेली बिस्तर पर लेटी थी और मसलसल एक ही बात सोच रही थी, क्या मैं अकेली इस कमरे में सो सकूंगी? खैर कुछ भी हो, सोना तो होगा, वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर 12 बज गए। नींद ने तो जैसे न आने की कसम खा रखी थी। अचानक इसको यूं महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा हो। मारे खौफ के वो तकिया मुंह में छुपा कर दुआ करने लगी, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी सुबह हो जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और शाजिया की रही सही कुव्वत भी जवाब दे गई। फिर इसने सरगोशी सुनी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इसको पकार रहा हो। कबल इसके वो चीख मारती या मदद के लिए किसी को बुलाती। साथ वाले घर से कड़ाहने की आवाज आई। शाजिया को थोड़ा हौसला हुआ और वह ताया यूसुफ के बारे में सोचने लगी। ताया यूसुफ इसके अब्बू के बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ जमीन लेकर घर बनाए थे। दोनों घरों में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। शाजिया का कमरा इनकी दीवार के साथ ही था। कुछ दिनों से ताया यूसुफ की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर आज तो यूं महसूस होता था जैसे कुछ ज्यादा ही खराब हो। इनके 2 बेटे थे, मगर दोनों ही शादी के बाद मुस्तकिल मुल्क से बाहर और ख्वाहिश इख्तियार कर चुके थे। वो दौलत की चमक ने माँ बाप और वतन की मोहब्बत इनको बुला दी थी। वो अपनी बेगम के साथ तन्हा यहाँ रहते थे और मोहल्ले के सबसे छोटे बड़े इनको ताया जी ही कहते थे। शाजिया इनके बारे में सोचती हुई न जाने कब नींद की वादी में उतर गई। सुबह वो नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रही थी कि मस्जिद जाते हुए इरफान इसके करीब रुक गए। कमाल है तुम जिंदा हो, मैं तो समझा था कि आप
वो शरारत से जुमला अधूरा छोड़कर मुस्कुराते हुए चला गया और शाजिया का मूड सुबह ही सुबह खराब हो गया। नाश्ते की मेज पर सबने इसे खैरत से देखा और तकरीबन सबने बारी बारी ये सवाल किया, शाजी तुम ठीक तो हो? जब भैया ने भी आकर यही बात पूछी तो वो गुस्से से उठती हुई बोली, क्या मैं रात को पहाड़ों की चोटियां सर करने गई थी जो आप सब हजरात बारी बारी मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं? अरे भाई तुम तो बुरा मान गई। भैया ने इसे पकड़कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठा लिया। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि हमारी ये बहना कुछ डरपोक सी है। फिर वही बात। शाजिया गुस्से से चीख पड़ी, आखिर आप इस बात को छोड़ क्यों नहीं देते? बोल क्यों नहीं जाते? मैं नहीं डरती वरती अब किसी चीज से। जी हाँ वो तो हम जानते हैं, मगर इरफान ने कुछ कहना चाहा। प्लीज आप चुप रहिए, शाजिया ने दांत पीसते हुए कहा। भाभी तो चुप रही, मगर अम्मी जान बोली, दफा करो इरफान, ये तो है ही सदा की बदतमीज। जी दरअसल मैं भूल गया था, इरफान ने इसको चुराने के लिए कहा और नाश्ता करने लगा। वलीमे के बाद आलिया आई, कुछ दिन रही और शाजिया के बारे में हैरत का इजहार करते हुए वह भी चली गई। इधर शाजिया का रोज का ये मामूल हो गया था, जब बिटर की वजह से इसकी आंख खुलती तो ताया जी की दर्द से कड़ाह रहे होते। शाजिया इनकी कराहें सुनकर मुतमिन सी होकर सो जाती, जैसे बाहर कोई चौकीदार हो। घर वाले अगरचा अब इससे कोई सवाल नहीं पूछते थे, मगर हैरान सभी थे कि आखिर क्या माजरा हो गया है। शाजिया यकदम इतनी बुखादर कैसे हो गई? सबसे ज्यादा हैरानगी इरफान को थी। इसका ख्याल था कि रात की तन्हाई में जब खौफ आएगा तो सारी अकड़ भूल जाएगी, तो शाजिया सारी अकड़ भूल जाएगी, मगर वो तो बजाय बोलने के कुछ और अकड़ गई थी और पहले से कुछ ज्यादा बेपरवाह हो गई थी। इरफान जरा मेरी बात तो सुनना, भाभी ने कहा तो इरफान इनके कमरे में चला गया। जी फरमाइए, इरफान ने बहन को देखते हुए पूछा। ये आखिर इतने दिनों से तुम क्या कर रहे हो? भाभी ने घूरते हुए पूछा। जक मार रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? भैया ने अंदर दाखिल होते हुए हंसकर कहा, अरे अगर ये कुछ कर रहा होता तो इसका नतीजा कुछ जाहिर ना होता। देखिए भाईजान, ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आधी रात को कमरे के बाहर चलता रहा हूँ, रूह बनकर सरगोशियों में इसे पुकारता रहा हूँ। हद तो ये है कि दरवाजे पर दस्तक भी दे डाली, मगर ये मुहतरमा इतनी बहादुर तो नजर नहीं आती। पर असर न लेने की क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है वो अपना फैसला नहीं बदलेगी, मुझे ही वापस अमेरिका जाना होगा। इरफान ने ठंडी आह बड़ी और भाभी हंसते हुए बोली, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ये तो बस सरा लाड प्यार देख रहे हैं हम, वरना जब अब्बू ने फैसला किया तो इसे हर हाल में मानना ही होगा। मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप कहती हैं तो। इरफान ने मस्कीन सी सूरत बनाई तो भैया कहकर मारकर हंसते हुए बोले, तुम जानते हो हम सब इसकी वजह से परेशान हैं। सोचा था कि तुम्हारी कोई तरकीब रंग लाएगी, मगर अफसोस उल्टी हो गई सब तदबीरें। कौन सी तदबीरें? शाजिया पूछती हुई कमरे में दाखिल हुई। आपकी बात नहीं हो रही है, इसलिए आपको बोलने की जरूरत नहीं। इरफान ने मुंह बनाकर इसको देखा। सादे फरोजी सूट में इसका सफेद रंग कुछ ज्यादा ही निखर रहा था। बड़ा सा दुपट्टा शानों पर फैलाए और बैग पकड़े वो रोज से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। इरफान की बात पर इसने घूर कर इरफान को देखा, मगर चुप रही। कहीं जा रही हो? भाभी ने इसका जायजा लेते हुए पूछा। जी भाभी जान, मुझे बाजार जाना है अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट लेने। शाजिया ने वजाहत की। शादी है क्या किसी दोस्ती की? शादी है क्या किसी दोस्त की? भाभी ने फिर पूछा। नहीं भाभी जान, सालगिरह है। भैया प्लीज आप जरा मुझे बाजार तक ले जाइए। और भैया जो अब तक बड़े इत्मीनान से खड़े थे, अचानक चेहरे पर तकलीफ के असर पैदा करते हुए बोले, शाजी मेरी तबीयत तो कुछ नासाज है। क्यों, क्या हुआ? शाजिया इनके नजदीक चली आई। पेट में कुछ तकलीफ सी महसूस कर रहा हूँ, शायद रात तक बाहर हो जाए, उन्होंने कमजोर सी आवाज में कहा। तो फिर मैं किसके साथ बाजार जाऊं? शाजिया परेशान हो गई थी। तुम ऐसा करो,
भैया कुछ कहते कहते रुक गए, फिर इरफान को देखते हुए बोले, तुमने कहा था तुम बाजार जा रहे हो। जी भाईजान, प्रोग्राम तो है, आपको कुछ मंगवाना है? इरफान ने अनजान बनकर मुस्कुराते हुए पूछा। मंगवाना क्या है? भाभी इसे घूरती हुई बोली, जब तुम बाजार जा रहे हो तो शाजिया को भी साथ लेते जाओ। मैं इनको साथ ले जाऊं? इरफान ने कानों को हाथ लगाते हुए शाजिया को देखा। हो ना हो, मैं तो जाने के लिए बेचैन हो रही हूं जैसे। शाजिया ने मुंह बनाकर सोचा। इरफान बकवास मत करो, भाभी बोली। अकेली जवान लड़की भला कहाँ जाएगी? हाँ हाँ हाँ, भैया भी जल्दी से बोले, साथ ही ले जाओ और साथ ही लेकर आना, जी बेहतर। इरफान चाबी घुमाता हुआ उठ खड़ा हुआ तो भाभी बोली, रास्ते में कोई फजूल हरकत मत करना।